فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد 81428774 شہر حیدرآباد کے گوشہ محل اسٹیڈیم میں عثمانیہ ہاسپٹل کی نئی عمارت کی تعمیر کی مخالفت کی جا رہی۔ بیگم بازار کے تاجروں نے اس خصوص میں جلسہ منعقد کرتے ہوئے حکومت سے اس تجویز کو واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ اس جلسے میں تاجروں اور مقامی عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی، جنہوں نے اسپتال کی تعمیر کی مخالفت کی۔ انہوں نے کہا عثمانیہ اسپتال اس وقت ان کے حلقے گوشہ محل میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ بیگم بازار ایک کاروباری مرکز ہے۔ مقامی افراد نے شکایت کی کہ اسپتال کے قیام سے ٹریفک میں خلل پڑے گا، اسپتال سے نکلنے والے فضلے سے ہوا اور پانی آلودہ ہوگی۔ انہوں نے ریاستی حکومت سے مضافاتی علاقے میں اسپتال کی تعمیر کا مطالبہ کیا اور کہا کہ شہر کے مضافات میں نئے اسپتال کی عمارت کی تعمیر ہر لحاظ سے موزوں ہوگی۔ تلنگانہ کے وقار آباد ضلع کے لاگاچرلا گاؤں کے کسانوں کو گرفتار کرنے کے واقعے کے خلاف علامتی طور پر اپنے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں اور سیاہ شرٹس پہن کر ریاست کی اصل اپوزیشن جماعت BRS کے لیڈران اسمبلی اور کونسل پہنچے۔ اسمبلی کے سرمائی سیشن کے تیسرے دن یہ انوکھا احتجاج لاگاچرلا کے کسانوں کی حمایت میں کیا گیا۔ فارما ولیج کے قیام کے لیے کسانوں سے رائے حاصل کرنے کے لیے پہنچے کلیکٹر اور دیگر عہدیداروں پر اس گاؤں کے کسانوں نے حملہ کیا تھا۔ اس واقعے میں ملوث کسانوں کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ ایک کسان کی صحت کی خرابی پر اس کو ہتھ کڑی لگا کر اسپتال منتقل کرنے کی تصویر کے سامنے آنے کے بعد BRS نے شدید برہمی کا اظہار کیا تھا اور BRS کے لیڈران اپنے ہاتھوں میں ہتھ کڑی لگائے اور سیاہ شرٹس پہنے اسمبلی و کونسل کے اجلاس میں شرکت کے لیے پہنچے۔ انہوں نے کسانوں سے انصاف اور ان گرفتار کسانوں کو فوری رہا کرنے کا مطالبہ کیا۔ రైతులకు బేడీలో లూటీ రాజ్యం లాఠీ రాజ్యం లూటీ రాజ్యం రైతులకు బేడీలో రైతులకు కరెంటు షాకులా లాఠీ రాజ్యం లూటీ రాజ్యం రైతులకు బేడీలా రైతులకు బేడీలా مجلس کے فلور لیڈر اکبر الدین اویسی نے طلباء کی فیس ریمبرسمنٹ کی رقم جاری نہ کرنے پر سڑکوں پر نکل کر لاکھوں طلباء کی تائید میں احتجاج کرنے کی حکومت کو دھمکی دی ہے۔ تلنگانہ قانون ساز اسمبلی میں وقفہ صفر کے دوران طلباء کی فیس ریمبرسمنٹ کی رقم کی اجرائی کے مسئلے کو اٹھاتے ہوئے اکبر الدین اویسی نے کہا ہے کہ گزشتہ 4 سال سے حکومت نے 20 لاکھ طلباء کی فیس ریمبرسمنٹ کی رقم جاری نہیں کی ہے، جس کی وجہ سے اقلیتوں سمیت دیگر طبقات کے بچوں کو کافی مشکلات پیش آ رہی۔ انہوں نے کہا ہے کہ انجینئرنگ سمیت کئی پیشہ وارانہ کورسز کی تکمیل کے بعد بھی طلباء کو ان کے سرٹیفکیٹ جاری نہیں کیے جا رہے، کیونکہ خانگی کالجوں کے انتظامیہ بھی فیس ریمبرسمنٹ کی رقم نہ ملنے سے پریشان ہے اور وہ سٹاف کو تنخواہ دینے کے موقف میں نہیں۔ مجلس کے فلور لیڈر نے کہا ہے کہ یہ ایک اہم مسئلہ ہے، اس سلسلے میں حکومت کو فوری طور پر کچھ نہ کچھ رقم جاری کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر حکومت رقم جاری نہیں کرتی ہے تو مجلس پارٹی طلباء کی تائید میں سڑک پر نکل کر احتجاج کرے گی۔ انہوں نے اس مسئلے پر تمام سیاسی جماعتوں کو بھی مجلس کے احتجاج میں شامل ہونے کی خواہش کی۔ Managements کیسا چلائیں گے؟ A college functions and runs through the fees which is being collected from the students. If the fees is not received on the time, sir, it is not only lakhs of students, sir. I would say, sir, I might be wrong, but please correct me if I am wrong. 20 lakh students are suffering, sir, as of now. 20 lakh students suffer کر رہے ہیں، SC, ST, BCs, minorities. اور نہ صرف 20 لاکھ اسٹوڈنٹ سفر کر رہے ہیں سر، آلموسٹ 4 lakh teaching staff is not getting their salaries on time, or from months they are not being getting the salaries paid.
So it is such an important issue, sir. Sir, the government should not forget that if today we are here in the state of Telangana, it were the sacrifices of the students, the agitation of the students, that we got Telangana, sir. And now the hardship has been faced by the students. They are not getting certificates, they cannot go for the jobs, and the managements are not getting the money, they are unable to pay the salaries. Many colleges are shutting down, sir, they are availing loans, and it has been more than 1 year, not a single paisa has been released, sir. Not a single paisa has been released, sir. And also the CM overseas scholarships, sir. I am coming on record and saying, sir, there should be an inquiry conducted, sir. 20 lakh rupees is being given to the students who want to go abroad and have the master study, sir. सर 5-5 लाख रुपए लेकर जो है सो उनको 20 लाख रुपए रिलीज किया जा रहा है। सर आप बताइए सर, ये बच्चों की स्कॉलरशिप नहीं आती है, स्टूडेंट सफर कर रहे हैं, और जो पैसे खाने वाले 5-5 लाख रुपए लेकर मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को नहीं देते। सर ये इतना इंपॉर्टेंट और बर्निंग इश्यू है सर कि ये बच्चों के मुस्तकबिल से खिलवाड़ हो रहा है सर, उनके मुस्तकबिल को तारीकी में और अंधेरे में डाला जा रहा है। सर आई रिक्वेस्ट टू यू सर, काइंडली रिलीज सम अमाउंट सर, सम अमाउंट। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से रंगारेड्डी में वक्फ बोर्ड की जमीन पर पट्टा पासबुक अलॉट किए जाने और इलीगल कंस्ट्रक्शन का मुद्दा AIMIM MLC मिर्ज़ा अहमद बेग खादरी ने तेलंगाना लेजिस्लेटिव काउंसिल में उठाया। वक्फ की जमीन के ताल्लुक से और क्या कहा, देखिए उनका क्या कहना है। गंडीपेट मंडल जो कि निकनामपुर के एरिया में वक्फ बोर्ड की दरगाह की ज़मीन है, दरगाह हज़रत बंदगी मियाँ। ये वक्फ बोर्ड में इसकी गज़ेट है 14 एकड़ 26 गुंठे ज़मीन है साहब ये। मगर अफसोस के साथ कहता हूँ मैं, यहाँ पर हुकूमत की जानिब से 60-60 गज़ के पट्टे उस वक्फ बोर्ड की ज़मीन के ऊपर अलाट कर चुके हैं, और वहाँ पर इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है। और बारहा हम नुमाइंदगी करने के बावजूद भी, जैसा कि साबिक़ा हुकूमत के टाइम पे भी और उससे पहले राजशेखर रेड्डी साहब की हुकूमत के टाइम पे हमारे पार्टी के क़ायद मुख़न्ना मोहतरम खान अकबरुद्दीन अवैसी साहब, जो वक्फ बोर्ड की जो मिनॉरिटी की हाउस कमेटी थी, हाउस कमेटी के चेयरमैन अहमदुल्ला साहब थे, उनको वहाँ पर लेकर जाके जो सेक्रेटेरिएट कॉलोनी में, कॉलोनी का एरिया भी ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन में आ रहा था, उस टाइम पर जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब रुकाने लगाए। और बारहा हम नुमाइंदगी करने के बावजूद भी अभी भी वहाँ पर इलीगल तरीक़े से वहाँ पर काम हो रहा है। हमारे आपके ज़रिए मैं रेवेन्यू मिनिस्टर साहब को बताना चाहता हूँ कि इस तरीक़े से ये लोग नाजायज़ के वक्फ बोर्ड की ज़मीन के ऊपर जाकर। असेंबली में साबिक वजीर व BRS के रुकन असेंबली हरीश राव ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने इख्तिदार के 1 साल के अंदर 1,27,208 करोड़ रुपए का कर्ज उठाया है, और कहा कि अगर कर्ज इसी तरह जारी रहे तो अगले 5 सालों में कर्जा 6,36,040 करोड़ रुपए हो जाएगा। उन्होंने कहा कि BRS के 10 सालों के दौरान सिर्फ 4,17,496 करोड़ रुपए का कर्ज लिया गया था। देखिए असेंबली में MLA हरीश राव का इस ज़िमन में मजीद क्या कहना है। 3,000 కోట్లు పెరిగింది। ఆల్రెడీ ఇంతకు ముందే 2003వ తారీఖు 5వ తారీఖు తీసుకున్నారు, ఇవాళతో కలిపితే ఇంకో 1000 పెరిగింది। 55,277 కోట్లు FRBM కింద తీసుకున్నారు। కార్పొరేషన్ గ్యారంటీల కింద 61,991 కోట్లు తీసుకున్నారు। 10,099 కోట్లు గ్యారంటీ లేకుండా తీసుకున్నారు। మొత్తంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏడాది పాలనలో చేసిన అప్పు ఎంత అంటే 1,27,208 కోట్లు। ఒక్క ఏడాదిలో వీళ్ళు చేసిన అప్పు 1,27,208 కోట్లు। 5 ఏళ్లకు మనం లెక్క కడితే ఎంత అవుతుందంటే అధ్యక్ష, 6,36,040 కోట్ల రూపాయలు 5 ఏళ్లలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం చేయబోయే అప్పుగా దీన్ని బట్టి మనకు స్పష్టంగా కనబడతా ఉంది। ఇకపోతే అధ్యక్ష, ఈ మధ్య కాలంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు వైట్ పేపర్, కాంగ్రెస్ పార్టీ పెట్టిన వైట్ పేపర్ బుక్ కూడా తెచ్చాను। ఇది వైట్ పేపర్,
అదే విధంగా బట్టి విక్రమార్క గారు ఈ సభలో పెట్టిన పేపర్. దీని ఆధారంగా నేను పోయినసారి బడ్జెట్ సమావేశాల్లో కూడా చాలా స్పష్టంగా చెప్పాను. మీరు గతంలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ 10 ఏళ్ల కాలంలో 671 అని ఒకరంటారు, 7 లక్షల కోట్లని ఒకరంటారు, 711 అని నోటికొచ్చినట్టు మాట్లాడుతున్నారు. ఐ ఛాలెంజ్ ఇన్ దిస్ హౌస్, ఒకరోజు స్పెషల్ గా డిబేట్ పెడతారా పెట్టండి, లేదు ఆడిటర్ల. कांग्रेस एमएलए मंदुला सैमुअल ने असेंबली में कहा है कि म्यूनिसिपालिटी में काम करने वाले 90% लोग एससी से हैं। उन्होंने म्यूनिसिपालिटी में काम करने वालों के मसले को उठाया और कहा कि उनके पास तनख्वाह नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है। देखिए कांग्रेस एमएलए मंदुला सैमुअल का म्यूनिसिपालिटी में काम करने वाले अफराद के लिए क्या कहना है। మున్సిపాలిటీలో పనిచేస్తున్న కార్మికులు మొత్తం శ్రమజీవులు, వాళ్ళు ఎస్సీ కులానికి చెందిన వాళ్ళే 90% ఉన్నారు. వాళ్ళకి జీతాలు లేవు, మను లేవు, ఏమి లేవు, ఎక్కడ లేదు. कौंसिल के चेयरमैन गुत्ता सुखेंदर रेड्डी ने कहा है कि पिछली हुकूमत की तरफ से मनाउरू मनाबाडी में शुरू किए गए स्कूलों के बिल अदा करें और इन स्कूलों को मुकम्मल करें। उन्होंने कहा है कि बच्चे दरख्तों के नीचे बैठकर सबक पढ़ रहे हैं। देखिए असेंबली में कौंसिल के चेयरमैन गुत्ता सुखेंदर रेड्डी का इस ज़िमन में मजीद क्या कहना है। ఆ స్కీము ఇప్పుడు కొత్త ప్రభుత్వం ఏం చేసింది, అమ్మ ఆదర్శ పాఠశాల తీసుకున్నాం. వాటినన్నా పూర్తి చేస్తే బాగుండేది, వాటిని పూర్తి చేయలేదు. కాబట్టి దాని మీద మీరు ఒక మన ఊరు మనబడికి సంబంధించినటువంటి వాటి పేమెంట్స్ మొత్తం పూర్తి చేయాలి. ఫర్దర్గా ఉన్నటువంటి వర్క్లను ఇమీడియట్గా పూర్తి చేస్తే పిల్లలేమో ఇప్పుడు చెట్ల కింద కూర్చునేటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది. ఎందుకంటే హాఫ్ ఏ కన్స్ట్రక్షన్ అయి ఉన్నాయి అవన్నీ. కాబట్టి వాటి మీద ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి శ్రద్ధ తీసుకొని స్పెషల్ డ్రైవ్ కింద వాటిని పూర్తి చేయమని చెప్పి నేను గౌరవ మంత్రి గారి దృష్టికి తీసుకొస్తా ఉన్నాను. तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने इंटरमीडिएट साल अव्वल और दुवम के सालाना इम्तिहानात 2025 का शेड्यूल जारी किया। इम्तिहानात का आगाज 5 मार्च से होगा और ये 25 मार्च तक जारी रहेंगे, जबकि प्रैक्टिकल इम्तिहानात 3 फरवरी से 22 फरवरी के दरमियान मुनक्किद किए जाएंगे। इंटरमीडिएट एथिक्स एंड ह्यूमन वैल्यूज का इम्तिहान 29 जनवरी को होगा। तेलंगाना इंटरमीडिएट बोर्ड के सेक्रेटरी कृष्णा आदित्य ने इस हवाले से सरकारी एलामिया जारी किया। एलामिया के मुताबिक निसाब पहले ही मुकम्मल करने पर जोर दिया गया ताकि तलबा को इम्तिहानात से कबल नजरसानी का मुनासिब वक्त मिल सके। अहम नुकात, तहरीरी इम्तिहानात का आगाज 5 मार्च से होगा। प्रैक्टिकल इम्तिहानात 3 फरवरी से 22 फरवरी तक होंगे। एथिक्स एंड ह्यूमन वैल्यूज का खुसूसी इम्तिहान 29 जनवरी को मुनक्किद होगा। बोर्ड ने तलबा को बेहतर तैयारी और नजरसानी के लिए वक्त फराहम किया। तलबा को मशवरा दिया गया कि वो इम्तिहानात की तैयारी के लिए शेड्यूल के मुताबिक अपनी मनसूबाबंदी करें और वक्त पर हॉल टिकट हासिल करें। बोर्ड ने इम्तिहानात के दौरान बेज़ाब्तगियों से बचने के लिए सख्त निगरानी की यकीन दहानी भी कराई है। तेलंगाना असेंबली में बीआरएस लीडर व एमएलसी मोहम्मद महमूद अली ने कांग्रेस हुकूमत पर सख्त तनकीद की और उन्होंने कहा है कि रेवंत रेड्डी ने कहा था कि वो 2 मुस्लिम वजीर बनाएंगे, लेकिन हुकूमत के 1 साल बाद भी अक़लियतों के मसाइल को बयान करने के लिए एक भी मुस्लिम वजीर नहीं बनाया गया है। देखिए असेंबली में एमएलसी मोहम्मद महमूद अली का इस ज़िमन में मजीद क्या कहना है। चेयरमैन साहब, मैं एक बात चीफ मिनिस्टर साहब से आपके ज़रिए पूछना चाहता हूँ। इलेक्शन से पहले चीफ मिनिस्टर साहब ने बड़े वायदे किए और ख़ास तौर से माइनॉरिटीज़ के कहा कि हम एक नहीं 2 मिनिस्टर बनाएंगे माइनॉरिटीज़ से, मगर आज 1 साल होने के बाद एक भी माइनॉरिटी मिनिस्टर नहीं है। माइनॉरिटीज़ बहुत परेशान है, जब भी उनके इश्यूज़ होते हैं वो फिरते रहते हैं, कहाँ पर है माइनॉरिटी मिनिस्टर पता नहीं चलता। इसलिए हमारी गुजारिश है कि एक मिनिस्टर को जल्द से जल्द माइनॉरिटी मिनिस्टर बना जाए। और एक दूसरी बात है, इमाम और मौज़न हज़रात को हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद तकरीबन 50 साल के करीब कांग्रेस ने हुकूमत की, 17 साल तेलुगु देशम ने हुकूमत की, कभी भी इमाम और मौज़न हज़रात को कुछ भी हदिया नहीं दिया गया था। केसीआर साहब ने पहली मरतबा 5,000 रुपये इमाम साहब को, 5,000 मौज़न साहब को दिया गया। उसकी वो देखते हुए रेवंत रेड्डी साहब ने ऐलान किया था, मैं मौज़न पेशवाम साहब को 12,000 रुपये दूँगा, 10,000 रुपये इमाम साहब को दूँगा। मगर आज अफसोस की बात यह है कि वो 5,000 भी नहीं मिल रहे हैं। लोग हमें फ़ोन कर कर बता रहे हैं भाई कम से कम कौंसल में तो उठाइए
असम्बली में तो उठाइए, 4-4, 5-5, 6-6 महीने में भी हमें पैसे नहीं मिल रहे। हमारी आपके जरिए मिश्रा साहब से गुजारिश है कि इमाम और मौजूद हज़रात के पैसे जल्द से जल्द डाला जाए। थैंक यू। भारत राष्ट्र समिति के कारगुजार सदर व साबिक वजीर केटी रामाराव के जल्द या बादेर गिरफ्तार किए जाने के खदशात बढ़ गए हैं, चूंकि रेवंत रेड्डी काबीना के फार्मूला ई रेस में मुबैना बेकायदगियों की तहकीकात का आगाज करने की इजाजत दिए जाने की तलात है। वजीर आला रेवंत रेड्डी की सदारत में तेलंगाना कानून साज असम्बली के कमेटी हॉल 1 में काबीना का इजलास मुनक्किद हुआ था, जिसमें 2022 में हैदराबाद में मुनक्किदा फार्मूला ई रेस के मुंतजमीन को मुबैना तौर पर 55 करोड़ रुपए जारी किए जाने से मुतल्लिक केटी रामाराव के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला किया गया। मोतबर जराये के मुताबिक वज़ीर आला ने जायद अज 2.5 घंटे तक जारी रहने वाले काबीना इजलास में कहा कि हमने साबिक वजीर के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज करने के लिए गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा से मंजूरी हासिल कर ली है। एंटी करप्शन ब्यूरो ACB फार्मूला ई रेसिंग के दूसरे एडिशन के इनेकाद के लिए 55 करोड़ रुपए की मुबैना खर्द-बर्द के सिलसिले में 1 या 2 दिन में FIR दर्ज कर सकती है। इस केस में KTR के साथ साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमे बल्दी नज़्म-ओ-नस्क व शहरी तरक्कियात अरविंद कुमार और चीफ इंजीनियर HMDA BLN रेड्डी को मुलजिम बनाए जाने का इम्कान है। ACB के अहदेदार मुकदमे के अंदराज के सिलसिले में हुकूमत से बाज़ाब्ता अहकाम गवर्नर का मंजूर नामा मौसूल होने का इंतजार करते रहे। बताया जाता है कि काबीना इजलास से अहदेदारों के चले जाने के बाद साबिक BRS हुकूमत की जानिब से रेस के मुंतजमीन को 55 करोड़ की अदायगी के बारे में तबादला ख्याल किया गया। इल्जाम ये रहा कि मरोजा तरीक़ेकार को इख्तियार किए बगैर अदायगी की गई। केटी रामाराव ने इद्दा किया था कि उन्होंने हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी HMDA से रकम की इजराई का हुक्म दिया था और उस वक्त के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरविंद कुमार को अहकाम जारी किए थे। ई रेस तेलंगाना ई मोबिलिटी वीक के तहत हफ्ता तवील प्रोग्राम का हिस्सा था। समझा जाता है कि वज़रा का इस बात पर इत्तफाक था कि ऐसी कार्रवाइयों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इजलास को आगाह किया गया कि तहकीकाती एजेंसियों ने मामले की जांच शुरू कर दी है और इक़दाम लाजमी हो गया है। काबीना के ये एहसास था कि कानून अपना काम करेगा और मुबैना बेकायदगियों के जिम्मेदार किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। बताया जाता है कि वज़ीर आला ने केटी रामाराव के खिलाफ कार्रवाई के मुस्बित व मनफी पहलुओं पर अपने काबीनी रफ़क़ा से उनकी आरा हासिल की। ज़राए के मुताबिक तमाम वज़रा की मुत्तफ़िक़ा राय थी कि इस तरह की मुबैना बेकायदगियों को यूं ही नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। वज़रा का ये एहसास था कि अगर हम कार्रवाई करने का फैसला करते हैं तो हमें इस फैसले पर कायम रहना चाहिए। वजीर माल पी श्रीनिवास रेड्डी ने नुमाइंदों से गैर रस्मी बातचीत करते हुए कहा कि असेंबली में पेश करदा चंद बिल्स पर काबीना इजलास में गौर-व-ख़ौज़ किया गया। उन्होंने तौसीक़ कर दी कि गवर्नर ने केटी रामाराव के खिलाफ कार्रवाई की इजाजत दे दी है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने पहले ही अरविंद कुमार के खिलाफ कार्रवाई की इजाजत दे दी है। तमिलनाडु के वजीर आला और DMK के सदर MK स्टालिन ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक मुल्क एक इंतखाब के जरिए सदारती तर्ज के इंतखाबात करवाने के खुफिया मकसद के साथ बेशर्मी से आगे बढ़ने की कोशिश कर रही और अपोजिशन के इंडिया इत्तेहाद इस वफाकी मुखालिफ और नाकाबिल अमल बिल की पार्लियामेंट में मुखालिफत करेंगे। स्टालिन ने कहा है कि BJP के पास अक्सरियत न होने के बावजूद वो एक ऐसे अहम कानून को मंजूर करने की बेबाक कोशिश कर रही जो हिंदुस्तान की सियासत को हमेशा के लिए बदलने के खतरे का बाइस बन सकता है। उन्होंने हिंदुस्तान के तनू और आइन को बचाने के लिए तमाम जमहूरी ताकतों से अपील की कि वो इस इंतखाबी इस्लाहात के नाम पर थोपे गए इस नफरत अंगेज इक़दाम के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ने के लिए मुत्तहिद हों। उन्होंने एक पोस्ट में कहा, इंडिया इत्तेहाद वफाकी मुखालिफ और नाकाबिल अमल एक मुल्क एक इंतखाब की मुखालिफत करेगा। मरकजी BJP हुकूमत खुफिया तौर पर सदारती इंतखाबात कराने के मकसद से इस इक़दाम को आगे बढ़ाना चाहती है। उन्होंने कहा, इंतखाबी ढांचा हमारे आइन की रूह के खिलाफ है। उत्तर प्रदेश असेंबली के सरमाई इजलास से खिताब करते हुए योगी आदित्यनाथ ने अपोजिशन जमातों को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के असल आइन की तमहीद पढ़ने का मशवरा देते हुए कहा कि खुद को सेक्युलर कहने वाली जमातों को समझना होगा कि आइन में राम और कृष्ण का तो जिक्र किया गया है, लेकिन सेक्युलर और सोशलिस्ट लफ्ज ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। योगी ने अपोजिशन लीडरों को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा कि आपको बुनियादी हुकूक को देखना चाहिए। अगर आप आइन के मुख्तलिफ सफहात पर नजर
डालें तो आपको राम और कृष्ण नजर आएंगे। लंका जलाने के बाद अब भी बजरंग बली और इल्म की तबलीग करने वाले बुद्ध नजर आएंगे। हिंदुस्तान की भरपूर रिवायत का फलसफा आपको इसी आइन में मिल जाएगा, लेकिन इस असल आइन में कहीं भी सेक्युलर या सोशलिस्ट का लफ्ज नहीं है। कांग्रेस का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा, ये सब आपके लिए आंख खोलने वाला होना चाहिए। आप लोग आइन बदलने की बात करते हैं, आप सिर्फ आइन का गला घोंटने वालों के नौकर बनकर इख्तिदार पर कब्जा करना चाहते हैं। आप आवाम की आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। मुल्क आपको ऐसा नहीं करने देगा। समाजवादी पार्टी एसपी को हदफ तनकीद बनाते हुए योगी ने कहा कि जैसे ही संभल में आपके खटाखट की असलियत सामने आई, अवाम ने कहा सफाचट ज़िमनी इलेक्शन में 9 में से 7 पर बीजेपी और एनडीए इत्तेहाद ने जीत दर्ज की है। यही नहीं, सेसा मऊ और करहल को याद कीजिए। 2022 में समाजवादी पार्टी ने करहल में तकरीबन 70,000 वोटों से कामयाबी हासिल की थी। इस बार ये कम होकर सिर्फ 13-14,000 पर आ गई। वो भी चचा शिवपाल कुछ मेहरबानी कर गए, वरना वहाँ भी साफ था। लेकिन फिक्र ना करो, अगली बार ऐसा ही होगा। सेसा मऊ में भी बाल बच गए। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा आजम खान బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर. माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं. रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल. वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे.